Hello, everyone. I hope you all are doing very well. So, welcome to the daily news analysis where we cover the most important current affairs in a simple, concise, and an exam relevant manner. तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले न्यूज आर्टिकल के साथ. So, the first news article talks about the latest CPI data that has been released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, or the MOSPI. So the news says government unveils new CPI series covering more items and services with revised weights. January retail inflation at 2.75%. तो ये न्यूज आर्टिकल समझने से पहले आपको ये टर्म जो यहाँ पे यूज की जा रही है सीपीआई, इसका मतलब समझना होगा. So the CPI stands for Consumer Price Index. Okay. And this Consumer Price Index is a tool that is used to track inflation trends at the consumer level. जो कंज्यूमर लेवल पे इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए हम सीपीआई का यूज करते हैं. क्या कंज्यूमर लेवल पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कितनी तेजी से बढ़ रही है, क्या इन्फ्लेशन कम हो रही है, उस सब का जो ट्रैक होता है वी यूज अ टूल कॉल्ड एज सीपीआई. Now, the next question comes, how does CPI actually do that? How does CPI track inflation at the consumer level? The CPI actually measures change in the prices of a fixed basket of goods and services over time. So, जो goods and services that are commonly used by consumers, जैसे कि housing, clothing, transport, healthcare, जो ये commodities हैं, जो ये goods and services हैं, इनके prices के change को track करता है CPI और उस basis पे हमें पता लगता है कि what is the inflation scenario in our economy like? Is the inflation increasing? Is the inflation decreasing? Or whatever? Yes. So that is the whole concept of CPI. Yes, it is a tool to measure inflation at the consumer level. And what it does, it measures price change of a fixed basket of goods and services. Yes. Now, the next question comes, how does it actually show inflation trend? हमें CPI से कैसे हम interpret करते हैं CPI को और उसे इन्फ्लेशन के साथ हम कैसे लिंक करते हैं. तो देखिए, अगर सीपीआई राइज हो रहा है, जैसे मान लीजिए दिसंबर में मान लीजिए सीपीआई 2% था, जस्ट फॉर एग्जांपल in December 2025, taking an example, CPI was 2%. Now in January 2025, we are seeing that it has increased to 2.75%. That means inflation बढ़ रही है. इन्फ्लेशन दिसंबर में भी हुई, इन्फ्लेशन जनवरी में भी हुई, लेकिन जनवरी में इन्फ्लेशन ज्यादा तेजी से बढ़ी. इट इंक्रीज बाय 2.75% ओवर लास्ट ईयर सेम मंथ, दैट इज जनवरी 2025. समझ में आ गया आपको? तो इफ the CPI is rising, that indicates inflation. That means that prices of the consumer basket are increasing. Second, if it is a falling CPI growth rate, for instance, अभी जनवरी में 2.75% CPI है, अब मान लीजिए फरवरी में वो फॉल होके 1.50 हो जाता है या 1% हो जाता है, तो दैट विल इंडिकेट दैट द प्राइसेस आर नाउ इंक्रीजिंग एट अ स्लोअर रेट. यस, देखिए आपको ये समझना है कि पॉजिटिव सीपीआई इंडिकेट्स दैट प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, ये इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन जो उसके आगे का नंबर है दैट इंडिकेट्स दैट हाउ फास्ट इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग. यस, तो अगर अभी फेब्रुवरी में जाके वो 1% हो जाता है 2.75 से अभी, तो दैट विल इंडिकेट दैट देर इज अ फॉलिंग सीपीआई ग्रोथ रेट एंड दैट इंडिकेट्स डिसइन्फ्लेशन. डिसइन्फ्लेशन का मतलब है दैट प्राइसेस आर इंक्रीजिंग but they are increasing at a slower pace. They are not increasing as fast as they increased in the last month. Yes, so this is डिसफ्लेशन. अब देखिए तीसरा है नेगेटिव सीपीआई ग्रोथ रेट. अब मान लीजिए हमारा सीपीआई नेगेटिव में आ गया, उसका मतलब है कि डिफ्लेशन हुआ है, दैट प्राइसेस हैव फॉलन. जो हमारी कमोडिटीज हमने बास्केट में ली हैं उनका प्राइस फॉल हो गया है. अगर वो लास्ट ईयर जनवरी में मान लीजिए 2000 था और इस साल वो जनवरी में घट के 1000 हो गया, तो दैट इंडिकेट्स डिफ्लेशन हुआ है. दैट इज वाई जो हमारा सीपीआई होगा वो नेगेटिव आएगा. सो आई होप दिस इज क्लियर सीपीआई क्या है और सीपीआई को हम इन्फ्लेशन के साथ कैसे स्टडी करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, who releases CPI data? So in India, CPI data is released by the National Statistical Office, that is the NSO, which functions under the Ministry of Statistics and Program Implementation, or the MOSPI. And this NSO publishes CPI every month. So every month का CPI data NSO publish करती है.
and it compiles separate indices such as CPI rural, CPI urban, CPI combined. तो देखिए आप I'm sure all of you must will agree with me that consumption patterns vary. Urban regions में जो consumption patterns हैं, जो consumption behavior है, that is different from the consumption patterns in the rural regions. Yes, so that is why जो हमारी basket होती है, जो basket में हम goods and services लेते हैं, उनका जो weight होता है, उनको जो हम weight assign करते हैं calculate करते time, that varies. Yes, जैसे अर्बन रीजन में जो हाउसिंग है उसको हम ज्यादा वेटेज देंगे क्योंकि वहां पे हाउसिंग इज अ डोमिनेंट फैक्टर. यस, सो दैट इज वाई जो सीपीआई होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेट किया जाता है, रूरल के लिए अलग, अर्बन के लिए अलग, और कंबाइंड भी कैलकुलेट किया जाता है. ओके, so in January 2026 retail inflation stood at 2.75%. This means that अगर आपको मान लीजिए इस स्टेटमेंट का मतलब समझना है दैट रिटेल इन्फ्लेशन 2.75% है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है कि जो जनवरी में प्राइसेस हैं दे हैव रिजन 2.75 टाइम्स द प्राइसेस इन जनवरी 2025. तो हम लास्ट ईयर के सेम मंथ से सीपीआई कैलकुलेट करते हैं. ओके, द परसेंटेज इज seen, the change is seen with respect to the last year's same month. Okay, now we have to now understand what are the recent changes in CPI that are being talked in the news article. Now the CPI base year has shifted from 2012 to 2024 to reflect current consumption patterns. Yes, तो 2012 से चेंज करके हमने 2024 को चेंज कर दिया बेस ईयर. अब बेस ईयर क्या होता है ये पहले हम समझते हैं. तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि सीपीआई मेजर करता है चेंज, जो प्राइसेस में चेंज होता है उसको सीपीआई मेजर करता है. लेकिन जो चेंज है, यू विल अग्री दैट चेंज इज अ वेरी रिलेटिव कॉन्सेप्ट. यस, चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू समथिंग. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड पैरामीटर. यस, चेंज हम वैसे कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे भी जो वो पैरामीटर, जो वो रेफरेंस पीरियड है, उसको हम बेस पीरियड कहते हैं. यस, जो करंट प्राइसेस है दे आर कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू द प्राइसेस इन बेस ईयर, और उस कंपैरिजन के बेसिस पे हम कहते हैं कि क्या प्राइसेस बढ़े हैं या फिर घटे हैं. सो अभी रिसेंटली बेस ईयर को शिफ्ट कर दिया गया है फ्रॉम 2012 टू 2024. अनदर चेंजेस आर दैट द आइटम ऑफ द जो बास्केट है, बास्केट ऑफ कमोडिटीज हैज आल्सो बीन रिवाइज्ड. यस, at the all India level, the number of weighted items have now increased from 299 to 358. Yes, now for the first time, some new services have been included in the basket, in the CPI basket. Rural house rent for improving coverage of rural housing consumption has been included. And there is also a representation of modern consumption items such as online media services and fuels such as the emerging fuels such as the CNG and the PNG. Yes, so I hope this was clear. These are the recent changes that have taken place in the CPI, and we have already understood what CPI means, what is it used for, and how it is important to understand the inflation scenario in our economy. So I hope this article is clear to you. Now let's move to the next article. So the next article talks about the communication spectrum. Yes, the news says telecom service providers do not own spectrum, and it's a Supreme Court's judgment. Now, first we need to understand that what is a spectrum. ये जो term यहाँ पे use हो रही है spectrum, what it actually means, इसका क्या मतलब है? तो जो spectrum है that refers to the radio frequency spectrum used for wireless communication. ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जब मोबाइल फोन पे किसी से बात करते हैं, यस, यू यूज योर मोबाइल फोन टू टॉक टू समवन, तो जो आपकी वॉइस होती है दैट इज ट्रांसमिटेड यूजिंग द रेडियो वेव्स. यस, दोज रेडियो वेव्स आर नॉट विजिबल टू यू, आपको वो दिखती नहीं है, बट दे आर द वंस, दे आर द वेव्स दैट मेक दिस कम्युनिकेशन पॉसिबल. यस, so these are the invisible electromagnetic waves that carry mobile calls, internet data, TV signals, satellite communication, GPS, etc. तो इन सारी चीज़ों के लिए, इस सारे डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करते हैं वो रेडियो स्पेक्ट्रम कहलाता है. ओके, नाउ द पॉइंट हियर इज दैट जो ये रेडियो स्पेक्ट्रम है, यस, जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, दैट इज अ स्कार्स नेचुरल रिसोर्स. यस, वो फाइनाइट रिसोर्स है, वो एक फ्रीक्वेंसी रेंज है. रेडियो स्पेक्ट्रम लाइज बिटवीन 3 किलोहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज,
और ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, इसी बैंड के अंदर हमारी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। यस तो ये एक फाइनाइट रिसोर्स बन जाता है, इट इज नॉट इनफाइनाइट। यस वी कैन नॉट यूज इट फॉर एवर, दैट इज वाई इट इज अ लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज एंड इट कैन नॉट बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली। अगर हम ह्यूमन बींग्स चाहें कि हम आर्टिफिशियली एक रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड बना दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। यस वी कैन नॉट क्रिएट रेडियो, वी कैन क्रिएट रेडियो सिग्नल्स हम बना सकते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसीज फिजिक्स ने अलाउ किए हैं उनके बियॉन्ड हम रेडियो सिग्नल्स नहीं बना सकते। हम एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के ही रेडियो सिग्नल्स बना सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा रेडियो स्पेक्ट्रम है, जो वो पूरी रेंज है फ्रीक्वेंसीज की, वो एक लिमिटेड फाइनाइट रिसोर्स हो जाता है। यस नाउ सिंस दिस रेडियो स्पेक्ट्रम इज अ स्कार्स वैल्यूएबल रिसोर्स इट एंड इट इज एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन, जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो रेगुलेट करती हैं जो रेडियो स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, इट इज वेरी मच रेगुलेटेड। तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में द स्पेक्ट्रम इज ऑक्शन। यस टेलीकॉम कंपनीज बिड फॉर licensing and after paying auction fees company get the right to use a specific frequency band, that too for a fixed period. Yes तो इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप ये समझते हैं कि जो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, ये सबसे पहले तो गवर्नमेंट, ये एक हमारा नेचुरल रिसोर्स है। यस इट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, company only gets the right to use, not the ownership rights. Yes it does not become an asset to the company. कंपनी जब अपना ऑक्शन से लाइसेंस, ऑक्शन फीस दे के लाइसेंस ले लेती है, तो इट इज द लाइसेंस टू ओनली यूज दैट फ्रीक्वेंसी बैंड, नॉट टू ओन इट। यस देयर इज अ डिफरेंस, राइट टू यूज बट नॉट द राइट टू ओन। ओनरशिप हमारे पास है, सिटीजन्स के पास है, गवर्नमेंट के पास है। यस तो इंडियन लॉ कंसिडर्स स्पेक्ट्रम टू बी अ नेचुरल रिसोर्स। यस सिमिलर टू मिनरल्स, फॉरेस्ट, रिवर्स। जैसे आप नहीं कह सकते कि दैट रिवर्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, you cannot say that this forest belongs to a particular individual. So in a similar manner radio spectrum also belongs collectively to citizens and government acts as a trustee, not the owner. ठीक है, on the behalf of all of us, government is responsible for the protection, for for justified allocation of this radio spectrum. Clear? So now अब जो issue आ रहा है, that is जो न्यूज आर्टिकल में डिस्कस किया गया, दैट इज दैट सम कंपनीज आर आस्किंग कि हमें ओनरशिप राइट्स चाहिए, सिंस वी हैव पेड सो मच टू बाय दिस फ्रीक्वेंसी बैंड, वी वांट द ओनरशिप राइट्स, दे आर क्लेमिंग द ओनरशिप राइट्स फॉर दैट रेडियो स्पेक्ट्रम. So what is happening, that many telecom companies have accumulated large debts, okay, and when they entered insolvency proceeds, they are now arguing that spectrum should be treated as a company asset. It should be allowed to sell टू रिकवर लोन्स. ठीक है, तो कंपनीज का ये कहना है कि क्योंकि हमने इतने पैसे दिए हैं वो स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए, हमें अलाउ किया जाए कि हम उसे एज अ कंपनी एसेट ट्रीट करें और हम उसको बेचकर अपने लोन की रिकवरी पूरी कर सकें. बट दैट कैन नॉट हैपन. वी जस्ट स्टडी दैट इट इज अ नेचुरल रिसोर्स. जो रेडियो स्पेक्ट्रम है उसको हम एज अ नेचुरल रिसोर्स ट्रीट करते हैं. इट डज नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंपनी. Yes, it cannot become a company asset. So telecom companies have now argued that we already studied. So the government stand, the Supreme Court stand on this is that telecom service providers do not own spectrum. तो Supreme Court ने एक बारी दोबारा से ये reaffirm कर दिया that the spectrum does not belong to the telecom service providers. वो उसको as a company asset नहीं treat कर सकते और वो उसको sell करके अपने loans की recovery पूरी, मतलब अपने loans को पूरा pay नहीं कर सकते. Clear? So I hope this article is also clear. आपको इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, मोस्ट प्रोबेबली दैट यू विल बी गिवन अ स्टेटमेंट टू कंफ्यूज यू दैट रेडियो स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स. यस, जिन्होंने उसकी लाइसेंस फीस पे करके उसको खरीद लिया है. तो ऐसा नहीं होता. यू हैव टू बी क्लियर दैट इट इज अ नेचुरल रिसोर्स and government acts as a trustee, not as a owner. ठीक है, it is a natural resource just like any other forest, river or any other mineral resource. I hope this is clear now. Okay, let's move to the next article now. It says India is set to get 2 new telescopes and upgrade one in Ladakh. Here's how it will be game changer for astronomy. तो जो अभी आपका recent budget 2026-27 आया है, that has proposed
द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू टेलीस्कोप्स एंड, और जो एक ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल टेलीस्कोप है उसका अपग्रेड भी बजट ने प्रपोज किया. नाउ वी नीड टू नो दैट व्हाट विच दीज 2 telescopes are. So the union budget approves 2 new advanced telescopes and upgrade of 1 existing telescope. All of these are located and will be located in Ladakh, which is already a major astronomy hub in India. Now, लद्दाख हमारा एस्ट्रोनॉमी हब है, यस. हमारा जो फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व है दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन लद्दाख. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि लद्दाख को ही क्यों हम अपने टेलीस्कोप सेटअप करने के लिए, अपने जितने भी हमारी स्पेस ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनको सेटअप करने के लिए हम लद्दाख को ही क्यों यूज करते हैं. सो द आंसर इज दैट लद्दाख इज आइडियल बिकॉज ऑफ इट्स हाई ऑल्टीट्यूड, कोल्ड ड्राई एयर, मिनिमल पोल्यूशन, क्लियर स्काइज एंड लो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस. तो इन रीजंस की वजह से जो लद्दाख है दैट वी आर developing as our astronomy hub. Now, we need to see that what these 2 telescopes are. So the first one is National Large Solar Telescope. So we need to know the basic details. So it is a 2 meter aperture solar telescope. Aperture का मतलब होता है size. तो जो इसकी जो लेंस होगी टेलीस्कोप की उसका जो डायमीटर होगा दैट विल बी 2 meters. सो सिंपली अगर आपको याद रखना हो इतनी डेप्थ में ना जाकर, तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट द साइज ऑफ द लेंस इज 2 meter diameter. Okay, then is the location of this telescope. It will be located near Pangong So Lake, yes, in the Merak region of Ladakh, yes, near Pangong So Lake. Then is what will it do? हम क्यों उसको इंस्टॉल कर रहे हैं? So it is basically, उसके नेम से ही आप पता लगा सकते हैं, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप. सोलर माने सन. तो we are installing this telescope to study sun, to study solar magnetism, solar dynamism, solar flares, etc. Yes, जो सन की जो फिनोमेना है उनको स्टडी करने के लिए हम नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप को इंस्टॉल कर रहे हैं. The next important question comes that it will work in which electromagnetic waves. Yes, कि कौन से electromagnetic waves को identify कर पाएगा और उनको study कर पाएगा. So these are visible light and near infrared wavelengths. Two wavelengths को ये catch कर सकता है और उनको study कर सकता है. These are visible light and near infrared wavelengths. Okay. Then is the expected operational timeline. कब तक हम इस टेलीस्कोप को सेटअप कर देंगे और कब तक ये फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा. That is 5 to 6 years. Then this is important that it will become India's third ground based solar observatory. तो इसका मतलब है कि अगर ये थर्ड है तो इससे पहले भी कोई 2 होंगे. तो आइए उन दोनों को भी देख लेते हैं. वो 2 हैं. The first one is Kodaikanal Solar Observatory. It was set up in the year 1899. काफी पुराना है ये. The second one is Udaipur Solar Observatory, set up in the year 1975. तो अब जो हमारा नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप है दैट विल बिकम द थर्ड, यस, थर्ड ग्राउंड बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी. और ये कहाँ पे बनने जा रहा है? लद्दाख में बनने जा रहा है. जो बाकी 2 हैं उसमें से पहला कोडाईकनाल एंड द सेकेंड वन इज इन उदयपुर. सो इंडिया ऑल्सो हैज अ स्पेस सोलर ऑब्जर्वेटरी. ये तो ग्राउंड बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरीज है, यस. ये ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स है जिनको हम ग्राउंड पे इंस्टॉल करेंगे और वो ग्राउंड पे रह के सन को ऑब्जर्व करेंगे. लेकिन हमारा एक ऐसा मिशन भी है, हमारा एक ऐसा स्पेस मिशन भी है जो स्पेस में जाकर सन को स्टडी कर रहा है. एंड दैट मिशन इज आदित्य L1. वेरी इंपॉर्टेंट. It is fixed at the Lagrange point 1 in the Earth Sun system and it is continuously observing the sun. Okay, so these are our sun related observatories. 3 are ground based and 1 is space based. Okay, now let's move to the next telescope, that is नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप. इसमें भी सबसे पहले हमें समझना है कि इसका साइज कितना है. इट इज 13.7 मीटर अपर्चर टेलीस्कोप. अपर्चर उसमें था नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप में 2 meters. यहाँ पे है 13.7 meters. It's located again in Ladakh in a place called as Hanle. Okay. And it is one of the largest optical infrared telescopes in the world. इसको ऐसा कहा जा रहा है कि जो इस अपर्चर पे this telescope will become one of the largest telescopes in the world. Okay. Then it uses segmented mirror technology. So ये कुछ थोड़ा समझने वाला है तो इससे समझते हैं. देखिए टेलीस्कोप में मिरर यूज होता है. तो जो सेगमेंटेड मिरर टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है? इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन लार्ज मिरर it uses many small mirrors. Those small mirrors will finally then function as one large mirror.
Yes. Now you'll ask me कि ऐसा क्यों करते हैं हम? Why don't we simply use one large mirror and then let it function that way? So the answer is कि one large mirror को हैंडल करने में, उसको मेंटेन करने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा दिक्कत होती है एज कम्पेयर टू सर्विसिंग, मेंटेनिंग एंड हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मिरर्स. दैट इज वाई हमने ये जो टेलीस्कोप है हमारा एनएलओटी, इसमें हमने सेगमेंटेड मिरर टेक्नोलॉजी का यूज किया है. ओके, सो इट बिकम्स ईजी. जैसे हमें इतनी रिमोट लोकेशन पे इसको इंस्टॉल करना है, तो सेगमेंटेड मिरर टेक्नोलॉजी मेक्स इट ईजियर फॉर अस. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि हमने देखा कि हमने एनएसएलटी का यूज सन को स्टडी करने के लिए किया है. नाउ द क्वेश्चन कम्स एनएलओटी को हम किस चीज के लिए यूज करेंगे? सो इट विल बी यूज्ड टू स्टडी exoplanets, stellar evolution मतलब स्टार एवोल्यूशन, गैलेक्टिक एवोल्यूशन मतलब गैलेक्सी एवोल्यूशन, सुपरनोवा एंड अर्ली यूनिवर्स फॉर्मेशन, कि हम इसको यूनिवर्स की हिस्ट्री पढ़ने के लिए यूज करेंगे. यूनिवर्स में जो डिफरेंट फिनोमेना होते हैं, जैसे कि इसमें है सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, उन सबको पढ़ने के लिए हम अपने एनएलओटी का यूज करेंगे. ठीक है, तो ना एनएलएसटी वाज फॉर स्पेसिफिकली फॉर सन डेडिकेटेड studies, yes, for studying solar flares, solar phenomena. Now this is for entire जो एस्ट्रोफिजिक्स की स्टडीज हैं, जैसे स्टडिंग एक्सोप्लैनेट, स्टडिंग सुपरनोवा एक्सप्लोजन, स्टडिंग स्टार एवोल्यूशन, उन सब के लिए हम एनएलओटी का यूज करेंगे. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस. हम कल फिर से मिलेंगे कल की व्यूज के साथ. टिल देन, प्लीज डू रिवाइज व्हाट वी स्टडी टुडे. थैंक यू सो मच.